A very good morning to all of you. So in the last class of class 11, we were discussing the chapter 11, that is price determination, and we have discussed the topic, that is what are the different sources or the factors of demand shift, whether the demand curve will shift to the rightward or the leftward. So there are different factors due to which the curve is shifting rightward. Okay, these factors are the rise in the price of the substitute goods, fall in price of the complementary goods, increase in the income for normal goods, decrease in income for the inferior goods, favorable change in the taste and preferences, increase in the market size of or population, and the equal distribution of income. So these all are the reason for the increase in demand, and the curve will shift to the rightward. Okay, next one is what are the different factors due to which the curve is shifted to the leftward, that is fall in the price of the substitute goods, rise in the price of complementary goods, decrease in the income of the normal goods, increase in the income for the inferior goods, unfavorable changes in the taste and preferences, decrease in the market size or population, and the unequal distribution of income, due to which the demand curve is shift to the leftward. And these all are the reason, because of this the demand curve shift to the rightward. Okay, so there are also some the factors affecting the supply curve, why the supply curve will shift to the rightward or the leftward. Okay, so the reason for the rightward shift is the increase in supply. Okay, the supply is increasing, and why the supply has been increased. So these all are the some reason, that is improvement in technology. When the technology is improved, fall in the price of the inputs, fall in the excise tax rate when the tax rate decrease, increase in the subsidy, increase in the price of the complementary goods, decrease in the price of the substitute goods, increase in the number of firms. When the number of firms increase, so the supply will also increase, and then supply curve will shift to the rightward. Next, what are the different reason for the decrease in supply? Then the curve will shift to the leftward. So first one is deterioration in the technology. Second one is rise in the price of inputs, rise in excise tax rate, decrease in subsidy, decrease in the price of the complementary goods, increase in the price of the substitute goods, decrease in the number of firms. So these all are the reason why the curve has been shift to the leftward, the supply curve. Okay, that's why the curve will, in the case of decrease in supply, the curve will shift to the leftward, and when the case of increase in supply, the curve will shift to the rightward. S1 from SS to S1, and from in the leftward from SS to S2. Okay, these all are the reason only because of which the curve is shifting the rightward or the leftward. Okay, we have already discussed in the last class. Now the next one is we have started, that is effect of shift in demand and supply on the equilibrium price and the quantity. Okay, so what are the different effects of the shift, मतलब अगर कर्व हमारा क्या है, सामल्टेनियसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो इफ़ेक्ट उसका शिफ्ट इन सप्लाई ऑफ दी उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी as given. We have already discussed in the last class, that is the situation, it is the equilibrium condition, and when the okay, so it is OP price and OQ quantity. So when the price increase from OP to OP1, this is supply curve, this is demand curve. Okay, now the supply has been
increased up to the this one, and demand is this one. So it is the condition of excess supply. But when the condition has been come that when the price is decreased from P to P2, so it means the demand is itna and the supply is itna. So this is the increased one is excess demand. Okay, we have already discussed all these things. So अगर ये कंडीशन आती है कि जब प्राइस OP से OP1 हो जाए और प्राइस OP से OP2 हो जाए तो एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की कंडीशन आएगी. एंड हाउ वी विल कम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड एंड दी excess supply, and then we reach to again to the point of the equilibrium when the demand and the demand curve and the supply curve is intersect the both each other at the point E, and at that situation, this situation is called E point is called equilibrium, and the price OP is called equilibrium price, and the quantity OQ is called as the equilibrium quantity. Okay, so next topic is chain effect of the demand shift on the equilibrium price and the quantity. Chain effect means कि इफ़ेक्ट उसका क्या होगा कि जब शिफ्ट होगा कर्व में, कि कर्व हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट होता है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी को डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ड्यू टू change in these factor equilibrium price and quantity of a commodity is affected. उन्हीं की वजह से क्या होता है कि ये जो कर्व है इन दिस फैक्टर की वजह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, अगर हम प्राइस के साथ रिलेशन लेंगे तो ये इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, बिकॉज वी हैव सीन दैट देयर आर अदर्स फैक्टर ऑल्सो विच अफेक्ट दी डिमांड, जो डिमांड को और सप्लाई को भी अफेक्ट करते हैं. उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है. सो लेट अस स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. कुछ ऐसे फैक्टर्स को हम लोग चले पढ़ते हैं. वी विल डिस्कस दैट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, की जो डिमांड है कमोडिटी की उसको अफेक्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज effect of change in the taste and preference on the equilibrium price and quantity of a commodity. Okay, if ये change देखेंगे कि जब taste and preference कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर के अगर taste and preference में अगर change आता है तो उसका impact क्या होगा. ठीक है, अगर फेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो डिमांड हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी सिचुएशन है आपकी समर का सीज़न है. अब समर में क्या होगा, आइस की डिमांड ज़्यादा होगी कि स्वेटर की डिमांड ज़्यादा होगी, आप बताओ, बताइए. कि अभी क्या होगा कि अभी आपके पास अभी समर चल रहा है तो हम लोग क्या डिमांड करेंगे, एसी की डिमांड करेंगे कि हम लोग ये डिमांड करेंगे कि ब्लैंकेट लेकर आएँ. हम लोग डिमांड करेंगे एसी की. तो एसी के पर्सपेक्टिव में डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी. तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ फेवरेबल चेंज, कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है. अनफेवरेबल हम किसके लिए कह सकते हैं, ब्लैंकेट के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो फेवर में नहीं हो रहा है. तो अगर फेवर में बात करेंगे हम लोग एसी के, दैट मीन्स डिमांड विल इंक्रीज़, एंड व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज़ इट विल शिफ्ट टू द rightward or the leftward. It will shift to the rightward, as we already discussed from chapter theory of demand, कि जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी it will shift to the rightward, वो rightward shift हो जाएगा. Let's start when the taste and preference has been changed. So when first of all we discuss a favorable change, जब change क्या हो रहा है, वो फेवर में हो रहा है. A favorable change in taste and preference of a commodity causes demand of a commodity to rise. Okay, अगर favorable change हो रहा है taste and preference में commodity के, हमारा जो demand है commodity का वो क्या हो जाएगा, rise कर जाएगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल किसका दिया, AC और ब्लैंकेट का.
एसी की डिमांड क्या हो जाएगी, अब ये फेवरेबल चेंज हो गया क्योंकि हम टेस्ट, हमारा प्रेफरेंस चेंज हो गया ना। अभी समर में हम क्या डिमांड करेंगे, हम एसी की डिमांड करेंगे, तो एसी की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। अकॉर्डिंगली द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड। अब जब जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अ कंज्यूमर इज़ एबल टू बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट द सेम प्राइस। अब कंज्यूमर क्या करेगा कि मोर कमोडिटी को डिमांड करेगा, ठीक है। पहले वो क्या कर रहा है, अब फेवर में चेंज हो रहा है, तो अब क्या करेगा, कोई भी कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा। इन फिगर 11.9 दिस फिगर डिमांड कर्व इज़ डी डी, यू कैन सी दिस कर्व इज़ डी डी and the supply curve intersect SS at each other at point E. This is the supply curve and it is intersect this E point. Okay, so accordingly equilibrium point is E. Okay, we know that equilibrium point is E. Equilibrium price is OP. Okay, we also know कि OP is equilibrium price and OM is equilibrium quantity. इतना तो हम लोग जान ही गए हैं, क्योंकि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फर्स्ट सिचुएशन पे इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एंड द प्राइस ऑन विच व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट सम प्राइस, दैट प्राइस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द सम क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, यहाँ तक तो हम लोग एकदम अच्छे से जानते हैं। अब इसमें देखना है ऑब्जर्वेशन, इसका देखिए, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, कि अगर जो भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल चेंज हो रहा है, मतलब फेवर में चेंज हो रहा है, देयर इज़ इंक्रीज इन द डिमांड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी राइट फ्रॉम डी डी टू D1 D1। ठीक है, अब डिमांड क्या हो जाएगी, एसी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, हम डिमांड एसी की ज़्यादा करेंगे, तो इंक्रीज इन डिमांड, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड। सो डिमांड कर्व डी डी से आपका D1 D1 हो जाएगा, राइट। दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड। अब क्या हो रहा है, डिमांड क्या हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई है कि नहीं, इसलिए ज़्यादा हो गई कि पहले हम लोग इस पॉइंट तक इक्विलिब्रियम पॉइंट पा रहे थे, अब हमारा क्या है, डिमांड कर्व डी डी से D1 D1 शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे, ठीक। अब क्या हो रहा है कि दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड हो रही है क्योंकि एक प्रॉपर सिचुएशन वही होती है इकॉनमी में जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो, बट लोगों की डिमांड, समर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 45 से 50 हो गया है, तो एवरीबडी वांट्स टू हैव एसी, तो अब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड हो गई है। तो अब क्या है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो EN, ये पॉइंट EN क्या शो कर रहा है, ये एक्सेस डिमांड है, डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, देयर इज़ कंपटीशन अमंग दी बायर। अब आप ये सोचो, आपके पास, आप कोई शॉप पे जाते हो और कोई भी नॉर्मल चॉकलेट की डिमांड ले लो, अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई क्योंकि डिमांड एक्सट्रीम हो गई है, तो क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है कि यही होता है कि अरे जो पहले जाएगा उसी को मिल जाएगा और जो बाद में गया उसको नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, बायर्स के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है कि आप ये देखते होंगे कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे टैग लाइन, पहले आओ पहले पाओ, ये सारे क्या चीज़ें हैं, यही है कि कंपटीशन अमंग द बायर हो जाता है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। सो देयर इज़ कंपटीशन अमंग दी बायर्स, बायर्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। अब इस टाइम क्या हो, अब कोई भी सप्लायर ये सोचेगा यार डिमांड तो बड़ी ज़्यादा हो गई है लोगों की और सप्लाई हम इतना कर नहीं पा रहे हैं, तो हम एक ये चीज़ करते हैं, जो चॉकलेट या जो एसी 40,000 की मिल रही थी, अब वो सोचेगा सप्लायर इसको हम 60,000 कर देते हैं। अब 60,000 होने के बाद हर लोग तो अब एसी नहीं खरीदेंगे ना, अब तो ये कहेंगे कि पहले 40,000 की मिल रही थी, अब तो 60,000 की हो गई है, कौन जाएगा इतना महंगा परचेस करने, छोड़ो ऐसे ही सो लेंगे, ऐसे ही रह लेंगे, गर्मी में रह लेंगे। तो ये सारा क्या है, यही प्राइस को क्या कर रहा है, इतना कंपटीशन हो गया है कि वो प्राइस को एकदम अपवर्ड हो गया, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया।
सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, जैसे ही प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, सप्लाई एक्सटेंड कर जाएगी। सिंपल सी बात है। आप सोचो जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो सप्लायर सोचेगा ना कि अरे अब तो हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे, 60,000 अगर हो रहा है, पहले उसको 40,000 मिल रहा था, अब वो 60,000 मिल रहा है, तो अब सप्लायर क्या करेगा, मोर ऑफ द कमोडिटी को प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे सप्लाई इंक्रीज़ करेगी और सप्लाई एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट ई टू E1। अब सप्लाई हमारी E से E1 चली जाएगी, पहले यहीं पे थी, अब कंपटीशन अमंग द बायर हुआ तो ये OP से OP1 हो गया, प्राइस इंक्रीज़ कर गया, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 हो गया। ठीक है। सो एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम N टू E1। अब डिमांड क्या है, वो N से E1 चला गया। देख रहे हैं, डिमांड आपका पहले यहाँ पे पहुँच गया था, ये एक्सेस डिमांड की बात हम लोग कर रहे थे ना, E से E1 एक्सेस डिमांड हो गया था, अब डिमांड हमारा N से E1 चला गया। ठीक। सो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल अगेन एट पॉइंट E1। अब इससे पहले क्या थे, मार्केट डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं थे कि डिमांड यहाँ तक बढ़ गई थी। अब क्या कंडीशन होगी, अब ये कंडीशन होगी कि फिर से ये हमारा जो डिमांड है वो N से E1 चला गया, एंड देन जो मार्केट की डिमांड थी सप्लाई के इक्वल हो गई और न्यू इक्विलिब्रियम हो गया हमारे पास E1। ठीक। विच करेस्पॉन्ड टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब प्राइस भी क्या हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस भी OP से OP1 हो गई, और इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अरे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया OM टू OM1। समझ आया? इट्स सो सिंपल। देखिए कैसे एक साथ सामल्टेनियसली पढ़ रहे हैं हम लोग डिमांड और सप्लाई। अभी तक बस हम यही पढ़ते थे कि अगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी देख रहे हैं। अब एकदम एक जिस्ट सुन लीजिए आप लोग कि कोई भी कमोडिटी की क्या है, फेवरेबल चेंज हुआ है। मतलब हम एग्जांपल AC का लेके चल रहे थे, अभी भी AC का, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ है, फेवरेबल चेंज अगर हम बोल दें कि कोविड के टाइम पहले लोगों को इतना लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि क्लासेस क्या होती थी, लोग घर स्कूल जाके पढ़ लेते थे। अब क्या है कि वर्चुअल क्लास होनी है, मतलब ऑनलाइन क्लास होनी है, तो लोगों को क्या है, लैपटॉप चाहिए, क्योंकि उन्हें कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, प्रॉपर सारी फंक्शनिंग हो सके, क्योंकि फ़ोन में सारी फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। तो अब क्या है, लैपटॉप की नीड हो गई। इस जो अभी कोविड में लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फेवरेबल इसके लिए चेंज हो गया। तो अब जब फेवरेबल चेंज हो गया तो हमारा डिमांड क्या है कि इंक्रीज़ करेगा। वही डिमांड हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, अब डिमांड हम लोग D1 पे चले गए। ठीक है। D1 पे जाने का मतलब है कि जो लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से अब हट गए हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी है बट सप्लाई नहीं बढ़ी है। अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से यहाँ पे आ गए, या इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है। अब ये हो रहा है, अब जो भी शॉप्स हैं, अगर वाराणसी में हम लेके चलते हैं, जो भी वाराणसी की शॉप है, अब हम जैसे ही जा रहे हैं मार्केट में लैपटॉप लेने, अब पता चल रहा है कि उसने बोला कि अरे नहीं, अब तो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड हो गई थी। इसका क्या मतलब हो गया कि सारे बायर्स में कंपटीशन हो गया, कि वो जो जल्दी गया, वो जिसने जल्दी इसकी अवेलेबिलिटी हुई उसे लैपटॉप मिल गया, और जिसको नहीं होया उसको नहीं मिल पाया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपटीशन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस क्यों इंक्रीज़ होगी, इसलिए इंक्रीज़ होगी कि अब सप्लायर भी सोचेगा कि इस टाइम तो बहुत डिमांड हो गई है लैपटॉप की, अब मेरे को क्या करना चाहिए, यही टाइम है कि प्रॉफिट को हम अर्न करें। अब प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे ही वो लैपटॉप पहले 35,000 का मिल रहा था, अब वही लैपटॉप 45,000 का मिल रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई तो जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या हुए, मोटिवेट हुए कि यार ये पहले, अब तो हम लोग को 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। वो लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा सप्लाई करेंगे। जब और ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम हमारा डिसबैलेंस हो गया था, कि हम ई पॉइंट पे थे, अब हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था, सप्लाई कम हो गया था,
देन वी विल शिफ्ट टू दी दिस पॉइंट E1 पे हम फिर से आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा डिमांड के साथ साथ अब सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गया। डिमांड तो पहले से बढ़ी थी, अब सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई है। एंड देन वी विल रीच टू द पॉइंट E1, जो ये क्या करेगा कि अब हम फिर से न्यू इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिए, दैट इज़ E1, जहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो OP थी वो क्या हो गई है, OP1 हो गई है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो OM थी वो OM1 हो गई है। ठीक है, यही होता है कि जब फेवरेबल चेंज होता है एंड वी आर डिस्कसिंग द डिमांड एंड सप्लाई कर्व साइमल्टेनियसली। हम एक का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम दोनों का इफेक्ट देख रहे हैं, और विद दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, जो अदर्स फैक्टर हैं वो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। प्राइस ही बस डिमांड को अफेक्ट नहीं कर रही है, अदर्स फैक्टर भी डिमांड को साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हेन देयर इज अनफेवरेबल चेंज। Okay, when we will discuss the unfavorable changes, so unfavorable change in the taste and preference of a commodity causes demand of a commodity by a consumer to a fall. आज जो मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए कि अगर समर का सीज़न है और चेंज किस में हो रहा है कि वी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर AC, एंड ब्लैंकेट की डिमांड क्या होगी या स्वेटर की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, क्योंकि कोई तो स्वेटर पहन के तो गर्मी में रहेगा नहीं। सो ये चेंज क्या हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। अब डिमांड क्या होगी, स्वेटर की डिमांड क्या हो जाएगी, वो एज़ कंपेरिजन टू AC वो डिमांड कम हो जाएगी स्वेटर की, क्योंकि यहाँ पे हम अनफेवरेबल चेंज पढ़ रहे हैं, मतलब जो चेंज फेवर में नहीं हो रहा है। तो चेंज ब्लैंकेट के तो फेवर में हो नहीं रहा है, स्वेटर के तो फेवर में हो नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो डिमांड क्या है यहाँ पे, स्वेटर की कम हो जाएगी, वुलन क्लॉथ की कम हो जाएगी, तो इसका डिमांड क्या, डिमांड कर्व विल, डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो अनफेवरेबल चेंज इन द डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर टू अ फॉल। ठीक है, अनफेवरेबल चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कमोडिटी में, तो ये कॉज क्या करेगा, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी की डिमांड क्या है, वो कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसकी फॉल कर जाएगी। अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, वो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। वी नो वेरी वेल, जब डिमांड इंक्रीज होगी इट विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड, एंड व्हेन द डिमांड डिक्रीजेज इट विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड। अ कंज्यूमर बाय लेस एट द सेम प्राइस। अब कंज्यूमर क्या करेगा, कम बाई करेगा सेम प्राइस पे। ठीक है, सो इन फिगर, wait a minute, yes, in figure 11.10, in this demand curve DD and the supply curve SS intersect each other at point E. Okay, you can see demand curve and the supply curve both intersect at E. E पे क्या कर रहे हैं, दोनों intersect कर रहे हैं। Okay, so E here is the इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ओके इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, और OP क्या है, OP इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, यहाँ तक तो हम समझ ही गए हैं कि अगर जैसे ही कर्व हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दिस पॉइंट पे, दिस इज़ E, ये क्या होगा, OP इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM, और you can take any alphabet M, N, okay, so OM is equilibrium quantity. okay, तो यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और जब जैसे ही दिस इज़ डिमांड कर्व, दिस इज़ सप्लाई कर्व, तो जैसे ही डिमांड क्या होगी, कम होगी, सो इट विल शिफ्ट टू दी लेफ्टवर्ड। T1 शिफ्ट हो गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा, और प्राइस क्या हो जाएगी, OP1, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी भी OM1 हो जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इट इज सेइंग। यस, ऑब्जर्वेशन, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू द
लेफ्ट फ्रॉम डी टू डी टू। ओके, क्या हो रहा है, जैसे ही इकॉनमी में अनफेवरेबल चेंज हो रहा है, चेंज हमारे फेवर में नहीं हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के, देयर इज़ डिक्रीज़ इन डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हमने वुलन क्लॉथ का लिया। अब अगर हम यही देखते हैं, अगर हम विंटर में बात करते हैं तो विंटर में फेवरेबल चेंज किसके होगा, वुलन क्लॉथ्स के होगा, और अनफेवरेबल किसके लिए होगा, एयर कंडीशनर के लिए होगा। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इट टोटली डिपेंड कि कौन सा सीज़न है और किस गुड्स की हम डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो अनफेवरेबल चेंज जब होगा तो डिक्रीज़ इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी लेफ्ट फ्रॉम डी टू डी टू। अब डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ डी टू। दिस कॉजेज एक्सेस सप्लाई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है। सप्लाई क्यों ज़्यादा हो गई है, यू कैन सी हियर। अब डिमांड कर्व हमारा, डिमांड हमारी इतनी हो गई है, ठीक है, डिमांड पहले इतनी थी, ये थी, अब डिमांड हमारी इतनी हो गई है और सप्लाई इतनी हो गई है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई है। सो दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग द सेलर। अब क्या होगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जैसे अब वुलन क्लोथ्स की क्या है, डिमांड तो कम हो गई बट सप्लाई उसकी वैसी ही बहुत ज़्यादा पड़ी है। अब क्या होगा, ये कंपटीशन किसके बीच में कर देगा, सेलर के बीच में कर देगा कि सेलर तो वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेलर बहुत ज़्यादा कमोडिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट फेवर में चेंज हो नहीं रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, कोई भी परचेस करेगा नहीं कमोडिटी को, तो प्राइस क्या हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी, बिकॉज उसका कोई बायर नहीं होगा, सप्लायर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा, प्राइस क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। सो ड्यू टू डिक्रीज़ इन प्राइस, प्राइस में जैसे ही डिक्रीज़ होगा सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब जैसे ही प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो सप्लाई क्या है, ई से E2 आ जाएगी, मतलब दिस पॉइंट से सप्लाई पीछे हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन हो गया है। जब कंपटीशन हो गया तो बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जिनको लॉस होने लगा, वो लोग मार्केट को एग्ज़िट कर दिए या वो अपना प्रोडक्शन ही स्टॉप कर दिया, वो कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, ई से E2 आ जाएंगे दिस पॉइंट पे एंड डिमांड एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट T टू E2। अब पॉइंट जो डिमांड हमारी यहाँ चली गई थी, अब वो फिर से कहाँ चली जाएगी, E2 पे चली जाएगी, ठीक है। डिमांड क्या हो गई थी, डिमांड हमारी कम हो गई थी ना, तो डिमांड अब हम फिर से एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चले जाएंगे, दैट इज़ E2। सो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल अगेन। अब फिर क्या है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या है, इस E2 पे क्या है, इक्विलिब्रियम हो गए हैं। हम डिमांड इक्वल टू सप्लाई एट E2 और प्राइस क्या हो गई है, P2 और M2, सो विच करस्पॉन्ड टू अ लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप ये देखो इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हो गई है, P2 हो गई है, वो P से P2 हो गई है एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी M2 हो गई है, मतलब OM2 से वो OM2 हो, OM से OM2 हो गई है, मतलब प्राइस भी हमारी कम हो गई। प्राइस क्यों हो गई कम, क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी। अब मार्केट से बहुत सारे सप्लायर क्या थे, वो विथड्रॉ कर लिए, वो अब कह रहे हैं कि हम कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत लॉस हो रहा है। तो अब सप्लायर क्या हो गए, बहुत कम रह गए कि प्राइस के कम होते ही, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि प्राइस जैसे ही कम होगी सप्लाई विल ऑल्सो बी रिड्यूस, तो प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी जो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, OM तक हो रही थी, अब वो OM2 हो गई। सो दिस इज़ दी बेसिक व्हेन देयर इज़ चेंजेस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, मतलब जो डिमांड को अदर्स फैक्टर हैं वो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो फेवरेबल चेंज होगा सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड, इफ देयर इज़ अनफेवरेबल चेंज so the demand curve will shift to the leftward. So when there is rightward change or the demand curve will shift to the rightward, it means there is excess demand. वो excess demand की situation है जिससे क्या करना है कि हमें फिर से reduce करना है, और next condition is excess supply की,
तो सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें क्या करना है, सप्लाई को कम करके फिर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच आउट कर देना है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.